Good morning, dear students. Open your book, Chapter 4, Psychological Disorder. Today's topic is beta Behavioral and Developmental Disorders, page number 82. Now, listen carefully. Apart from those mentioned above, there are certain disorders that are specific to children and, if neglected, can lead to serious consequences later in life. Children have less self understanding and they have not yet developed a stable sense of identity, nor do they have an adequate frame of reference regarding reality, possibility, and value. As a result, they are unable to cope with stressful events, which might be reflected in behavioral and emotional problems. On the other hand, emotional problems on the other hand, although their inexperience and lack of self sufficiency make them easily upset by problems that seem minor to an adult, children typically bounce back more quickly. Means बेटा, जब बच्चा छोटा होता है, जब उस हम कोई ऑब्ज़र्व करते हैं ना, उसकी ऐसी हैबिट्स या उसकी कोई भी शॉर्ट कमिंग्स बिहेवियरल, उसके कोई बिहेवियर पैटर्न में या उसकी डेवलपमेंट में, तो उस चीज़ को ना हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। धीरे धीरे क्या होता है, अगर हम बच्चे को उस प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देते तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है और इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चा फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता, प्रॉपरली किसी चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पाता, अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपरली नहीं कर पाता, एज़ वेल बिहेवियर एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स को ज़्यादा फेस करता है कंपैरेटिवली टू नॉर्मल चाइल्ड। सो अब यहाँ पे कहा गया जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो धीरे धीरे अगर उसकी उसी टाइम पे ही हम उसकी प्रॉब्लम को ओवरकम कर लें, उस पर ध्यान दें, तो उसकी ये प्रॉब्लम ओवरकम हो जाती है। जैसे जैसे वो एडल्ट हो जाता है तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम नहीं किया जा सकता। सो अभी जो हम डिसऑर्डर्स कर रहे हैं ऑल आर रिलेटेड टू चिल्ड्रन। लेट्स डिस्कस सेवरल डिसऑर्डर्स ऑफ चाइल्डहुड लाइक attention deficit hyperactivity disorder. It is called also ADHD. Next is conduct disorder, and the next is separation anxiety disorder, as it called SAD, separation anxiety disorder. These disorder, if not attended, can lead to more serious and chronic disorders as the child moves into adulthood. अगर बचपन में ही बच्चों के इन डिसऑर्डर को क्योर नहीं किया जाता तो ये क्रॉनिक डिसऑर्डर्स बन जाते हैं एडल्टहुड तक जाते जाते। क्लासिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रंस डिसऑर्डर हैज़ फॉलोड अ डिफरेंट पाथ देन दैट ऑफ एडल्ट डिसऑर्डर। Eckenbach has identified two factors that are externalization and internalization, which include the majority of childhood behavior patterns. The externalizing disorders or under controlled problems include behaviors that are disruptive and often aggressive and aversive to others in the child's environment. And internalizing disorder are over controlled problems are those conditions where the child experiences depression, anxiety, and discomfort that may not be evident to others. मीन्स एक्सटर्नलाइजेशन जो डिसऑर्डर्स यहाँ पे कहा गया कि ये अंडर कंट्रोल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि किसी बच्चे का एग्रेसिव बिहेवियर है या उसका एग्रेसिव बिहेवियर उसके एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। बट जो इंटरनलाइज्ड होते हैं, जो कि इन बर्थ होते हैं, जैसे कि बच्चे को छोटे होते ही डिप्रेशन फेस कर रहा है, वो एनजाइटी फील कर रहा है, डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, इनको ओवरकम करना थोड़ा टफ होता है। देयर आर सेवरल डिसऑर्डर in which children display disruptive or externalization behaviors.
We will now focus on three prominent disorder. These are attention deficit hyperactivity disorder, ADHD, oppositional defiant disorder means ODD, and the conduct disorder. The two main features of ADHD are inattention and hyperactivity, impulsivity. Children who are inattentive find it difficult to sustain mental effort during work or play. They are a hard time keeping their minds on any one thing or in following instructions. Common complaints are that the child does not listen, can't concentrate, does not follow instructions, is disorganized, easily distracted, forgetful, does not finish assignments, and is quick to lose interest in boring activities. मीन्स बेटा अटेंशन डेफिसिट का मतलब है कि कोई भी बच्चे की जब ये बार बार कंप्लेंट्स आती हैं कि ये प्रॉपरली इसकी कंसंट्रेशन नहीं होती एक काम में, यहाँ वहाँ घूमता रहता है, या कोई भी काम को जल्दी से फिनिश नहीं करता, इसको कुछ समझाया जाए तो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता, एज़ वेल कि इसका जो इंटरेस्ट है वो बार बार इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं, बहुत जल्दी से इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं बोरिंग एक्टिविटीज़ में नाउ। और क्लास में भी अगर हम देखें तो स्टेबल नहीं होते ऐसे बच्चे, यहाँ वहाँ घूमते रहना बहुत ज़्यादा। नाउ children who are impulsive seem unable to control their immediate reaction or to think before they act. जो इम्पल्सिव बच्चे होते हैं वो सोचने, कोई एक्टिविटी दी गई बिना सोचे समझे ही अपना रिएक्शन देते हैं, क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया पहले ही उनके रिएक्शंस हो जाते हैं, सुनने से पहले, सोचने से पहले। They find it difficult to wait or take turns, have difficulty resisting immediate temptations or delaying gratification. Minor mishaps such as knocking things over are common, whereas more serious accidents and injuries can also occur. Hyperactivity also takes many forms. Children with ADHD are in constant motion. Sitting still through a lesson is impossible for them. उनके लिए बैठना बहुत आसान चीज़ नहीं है एक ही प्लेस पे। उनकी बॉडी एक्टिव बहुत ज़्यादा होती है, स्टेबल नहीं रह सकते वो। द चाइल्ड में फिडजिट, स्क्वैम, क्लाइंब एंड रन अराउंड द रूम एमलेसली। मैंने आपको बताया था बिना किसी काम के, बिना किसी रीज़न के ही घूमते रहना, ऊपर नीचे जाते रहना, मीन्स स्टेयर्स चढ़ रहा है उतर रहा है विदाउट एनी रीज़न। पेरेंट्स एंड टीचर्स डिस्क्राइब देम एज ड्रिवन बाय अ मोटर, ऑलवेज ऑन द गो एंड टॉक incessantly. Boys are 4 times more likely to be given this diagnosis than girls. ADHD बॉयज़ में कंपैरेटिवली ज़्यादा पाया जाता है बजाय कि गर्ल्स के। चिल्ड्रन विद ODD display age inappropriate amounts of stubbornness, are irritable, defiant, disobedient and behave in a hostile manner. Unlike ADHD, the rates of ODD in boys and girls are not very different. मीन्स ODD के जो बच्चे होते हैं जिन्हें ODD डिसऑर्डर होता है, मीन्स ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर होता है, ऐसे बच्चे ज़िद्दी होते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंट बिहेवियर होता है इनका। अनलाइक ADHD में जैसे हम कहते हैं कि बॉयज़ में ज़्यादा पाया जाता है, ODD में कुछ ऐसा डिफ्रेंशिएट नहीं है, दोनों में इक्वली हो सकता है। द टर्म conduct disorder and antisocial behavior refer to age inappropriate actions and attitudes that violate family expectations, societal norms and the personal or property rights of others. The behaviors typical of conduct disorder include aggressive conditions that cause or threaten harm to people or animals, non-aggressive conduct that cause property damage, major
deceitfulness or theft, and serious rule violations. Children show many different types of aggressive behavior. मीन्स जिन बच्चों को कंडक्ट डिसऑर्डर होता है इन्हें हम एंटी सोशल बिहेवियर भी बोलते हैं, कि जो लोग या जो बच्चे अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल नहीं करते, सोसाइटी के नॉर्म्स को नहीं मानते, वॉयलेंट बिहेवियर होता है, प्रॉपर्टी डैमेज बहुत ज़्यादा करते हैं, तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा होती है इनसे। तो कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर हैं। इसमें वो कौन कौन से हैं? वर्बल एग्रेशन होता है, जो लोग किसी के नाम वो करना, उल्टे पुल्टे नेम्स लेने, किसी के गालियाँ निकालनी। फिज़िकल एग्रेशन होता है, किसी को मारना, किसी के साथ छोटी छोटी बात पे फाइटिंग करना। हॉस्टाइल एग्रेशन होता है कि डायरेक्ट एंड इन्फ्लिक्टिंग इंजरी टू अदर्स, बिना किसी रीज़न के दूसरों को चोट पहुंचाना। एंड प्रोएक्टिव एग्रेशन मीन्स डोमिनेटिंग एंड बुलिंग अदर विदाउट प्रोवोकेशन। नेक्स्ट, इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर्स इंक्लूड सेपरेशन एंजाइटी। अब जो इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर्स हैं इसमें SAD काउंट होता है, दैट इज सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, एज वेल एज कॉल्ड डिप्रेशन, ऑल्सो फॉर्म ऑफ डिप्रेशन with in children. Separation anxiety disorder is an internalizing disorder unique to children. It is important prominent symptom is excessive anxiety or even panic experienced by children at being separated from their parents. Children with SAD may have difficulty being in a room by themselves, going to school alone, are fearful to entertaining new situations, and cling to and shadow their parents' every move. To avoid separation, children with SAD may first scream, throw severe tantrums, and make suicidal gestures. मीन बेटा, जिन बच्चों को सेपरेशन एंजाइटी होती है, मेनली छोटे बच्चों को, वो ईज़िली नई सिचुएशन में अपने आप को सेटल नहीं कर सकते। अगर यहाँ एग्ज़ाम्पल लें हम, कि अगर जब छोटा बच्चा स्कूल में जा रहा है, ये पहले भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो छोटा बच्चा इजीली से अपने आप को स्कूल में ना सेटल नहीं कर पाता। कई बार बच्चे को डिप्रेशन होता है कि वो अपने चाहता है कि ऑलवेज़ उनकी पेरेंट्स की शेडो, पेरेंट्स उनके आसपास रहें, वो अपने पेरेंट्स को छोड़ना नहीं चाहते। उनके अंदर एक फ़ियर होता है, एक डर होता है। अब मैं यहाँ स्कूल का एग्जांपल ले रही हूँ कि नॉर्मली 3 साल का बच्चा स्कूल आता है, तो नॉर्मली बच्चे मैक्सिमम इन 1 वीक सेटल्ड हो जाते हैं, विद इन 2 डेज़ 3 डेज़, मैक्सिमम इन 1 वीक, क्योंकि नए फर्स्ट टाइम स्कूल आते हैं, धीरे धीरे उनके लिए एक नया एटमॉस्फेयर है, नई सिचुएशन है, नया एनवायरनमेंट है, सेटल्ड हो जाते हैं। जिनको ऐसी प्रॉब्लम होती है ना सेपरेशन एंजाइटी, वो बच्चे 2-2 3-3 4-4 महीने तक सेटल्ड नहीं हो सकते। तो the ways in which children express and experience depression are related to their level of physical, emotional and cognitive development. An infant may show sadness by being passive and unresponsive. A preschooler may appear withdrawn and inhibited. A school age child may be argumentative and combative, and a teenager may express feelings of guilt and hopelessness. छोटे बच्चों का, जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्री स्कूलर्स होते हैं क्या करते हैं, वो विड्रॉ कर देते हैं कि हमने स्कूल नहीं जाना, ये रीज़न है, वो रीज़न है। जो टीनेजर्स होते हैं उनके अंदर गिल्ट की फीलिंग होती है, एज वेल एज होपलेस हो जाते हैं। चिल्ड्रन में ऑल्सो हैव मोर सीरियस डिसऑर्डर कॉल्ड pervasive developmental disorders. These disorders are characterized by severe and widespread impairment in social interaction and communication skills, and stereotyped patterns of behaviors, interest and activities. Means जो बच्चे परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं, उनकी कुछ इम्पेयरमेंट्स होती हैं कि सोशली वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते, स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होते, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता उनका किसी भी एक्टिविटी में। जैसे कि अब इसमें ऑटिस्टिक डिसऑर्डर बोलते हैं, हम इसको ऑटिज़म भी बोल देते हैं। इससे रिलेटेड भी एक मूवी आई थी अजय देवगन की, अगर आपने ध्यान दिया हो, उसमें इसको यही ऑटिस्टिक डिसऑर्डर होता है, ऑटिज़म कहते हैं इसे।
is one of the most common of these disorders. Children with autistic disorder have marked difficulties in social interaction एंड कम्युनिकेशन. ऐसे लोग नॉर्मली सोशल इंटरेक्शन नहीं कर सकते और उनके कम्युनिकेशन भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते. नाउ अबाउट 70% ऑफ चिल्ड्रन विद ऑटिज़म आर ऑल्सो मेंटली रिटार्डेड. हम इन्हें मेंटली रिटार्डेड भी बोलते हैं. 70% ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन. चिल्ड्रन विद ऑटिज़म experience profound difficulties in relating to other people. They are unable to innate social behavior and seem unresponsive to other people's feeling. They are unable to share experiences or emotions with others. They also show serious abnormalities in communication and language that persist over time. Many autistic children never develop speech, and those who do have repetitive and deviant speech patterns. Children with autism often show narrow patterns of interest and repetitive behavior such as leaning up objects or stereotyped body movements such as rocking. These motor movements may be self-stimulatory such as hand flapping or self-injuries such as banging their head against the wall. मीन्स बेटा जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं 70% ये एबनॉर्मली बोलते हैं हम इनको. जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है इनका माइंड डेवलप नहीं होता. इनकी जो IQ लेवल है वो सीवियर में काउंट होता है, प्रोफाउंड कैटेगरी में काउंट होता है. जैसे हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था ना, प्रोफाउंड कैटेगरी में कितना IQ होता है पर्सन का. तो धीरे धीरे इन बच्चों को तो मीन्स टॉयलेट ट्रेनिंग भी दी जाए ना तो वो भी इनको प्रॉपरली नहीं पता होता कि हमने किस अकॉर्डिंग से वॉशरूम में जाना है. ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, एक ही मोटर मूवमेंट में काफ़ी देर तक ये बैठे रहते हैं, या अगर क्लैपिंग कर रहे हैं तो क्लैपिंग ही करते रहते हैं. अपने आप को भी ये चोट पहुंचा सकते हैं, दीवार में सिर मारना एट ऑल, काफ़ी तरह से. नाउ नेक्स्ट आर ईटिंग डिसऑर्डर्स. Another group of disorders which are a special interest to young people are eating disorders. These include anorexia nervosa, bulimia nervosa and binge eating. So first is anorexia nervosa. The individual has a distorted body image that leads him to see himself as overweight, often refusing to eat, exercising compulsively and developing unusual habits such as refusing to eat in front of others. The anorexic may lose large amount of weight and even starve herself to death. एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है बेटा, जिस पर्सन को ये डिसऑर्डर होता है वो बार बार शीशे में अपने आप को देखता है, मिरर में अपने आप को देखता है और सोचता है मैं ओवरवेट हो रहा हूँ. एक्सट्रीम, चाहे वो बॉय है चाहे वो गर्ल है, किसी में भी हो सकता है ये. तो वो धीरे धीरे क्या करता है, अपनी ईटिंग हैबिट को रिड्यूस करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे अनयूजुअल हैबिट्स को अडॉप्ट कर लेता है. जैसे किसी के आगे कुछ नहीं खाना तो थोड़ा खाना. और लार्ज, इस वजह से क्या होता है, इनका लार्ज अमाउंट में वेट लूज होना शुरू हो जाता है, एज वेल एज समटाइम डेथ भी हो सकती है. इन बुलिमिया नर्वोसा द इंडिविजुअल में ईट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड, देन पर्ज हिज बॉडी ऑफ फूड बाय यूजिंग मेडिकेशंस सच एज laxatives or diuretics or by vomiting. The person often feels disgusted and ashamed when she binges and is relieved of tension and negative emotions after purging. Means बुलिमिया में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खाना शुरू, जैसे कि इसमें उल्टा है, एनोरेक्सिया में कम खाता है, बुलिमिया में ज़्यादा खाना शुरू कर देता है. एज वेल एज भूख की दवाइयाँ लेना भी शुरू कर देता है. उसे लगता है कि मेरा वेट रिड्यूस हो रहा है, मुझे अच्छी डाइट लेनी चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए, भूख लगने की दवाइयाँ लेने शुरू कर देना और फिर एक्सेस में खा के वॉमिटिंग्स करना. एज वेल वॉमिटिंग्स होने के बाद फिर अशेम्ड फुल फील करना, दूसरों के आगे अपने नेगेटिव इमोशंस की वजह से किसी दूसरे के आगे प्रॉपरली अपने आप को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना कर पाना. नेक्स्ट इज़ बिंज ईटिंग. बिंज ईटिंग में फ्रीक्वेंट एपिसोड होते हैं
आउट ऑफ कंट्रोल ईटिंग के, एक्सेस में खाना, बहुत ज़्यादा एक्सेस में खाना। विद दिस बेटा आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट है। इससे रिलेटेड मैं भी आपको क्वेश्चन दूंगी, वो भी आपने अपनी नोटबुक में करना है। नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज इन टॉपिक देन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।